किसी से मिलो, पहले उसका हाल पूछ लो, हाउ आर यू। तो वो अच्छा लगता है सबको, सबको अच्छा लगता है। हमें आदत नहीं है, हम हाथ मिला के फौरन कहते हैं ओ तू आ काम कर, उठे जा, प्रेजेंट करो। नो, से हाउ आर यू राइट, आर यू कंफर्टेबल। ऐसे एक दो फिक्रे बोलो, हर एक को ये अच्छा लगता है। चलें, मैंने आप लोगों की क्लास से पहले एक क्लास अभी और ली है, अभी अभी ली है, बस दो मिनट पहले ख़त्म की है। तो बट इट वाज गुड क्लास। लेकिन अब बोलिए डॉक्टर साहबा। जी सर। सर स्टार्ट कर दूं? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से कीजिए शुरू। Okay, sir. Mrs. Salma, wife of Mr. Asghar, 28 years age, not formally educated, housewife, married for last 8 years, first and consensuous marriage of both partners. She is gravida 3, para 2, previous normal vaginal deliveries, last childbirth 3 years back, last menstrual period on 12th of March 2021, making expected date of delivery on 19th of December 2021, with a duration of pregnancy 30 weeks, according to dates. She is resident of Chak, which is half hour distance from the hospital, where she is presented for the first time, not yet admitted. She is presented with the complaint of, in the outpatient department with the complaint of gestational amenorrhea of 30 weeks and correction of anemia with the twin pregnancy. My patient conceived in a regular menstrual cycle, and she later on confirmed her pregnancy by urine pregnancy test when she was 10 days overdue, and then she visited to the nearby clinic for the ultrasound when she was 2 months of gestation. She was told to have two gestational sac in dead scan, and the fetal cardiac activity was also present, but there is no history of any folic acid intake. She didn't book herself anywhere in some private or tertiary care, but remained compliant to that private clinic one or two times. My patient denies any history regarding flu, fever, rash-like symptoms, vaginal bleeding, vaginal discharge, urinary tract infection, no history of blood pressure checkup, blood or the urine investigations in the first trimester. She felt the fetal movement for the first time in the 4th month of the gestation, and they are satisfactory up till now. No history of oral glucose tolerance test, no history of any corona symptoms like flu, fever, and no corona vaccination. My patient also giving history of shortness of breath, easy fatigability, which was initially mild in amount, and she is able to carry out her household activities. But later on, with the passage of time, she is unable to carry out the activities, and the shortness of breath developed when she climbed 2 to 3 stairs. It is not associated with any chest pain radiating to the left arm, swelling over the feet, decreased urine output, long standing cough, and the bleeding with the cough in the bleeding in the sputum. My patient with this shortness of breath also giving no history of bleeding from mouth, nose, and gums, and bleeding from any orifice. No history regarding any bleeding disorder in the family, and the blood transfusion disorder in the patient herself or in the family. Her diet is deficient in meat, poultry, and eggs, and mostly comprises of the vegetables and the legumes with the increased tea intake. And however, there is no history of perineal itching, and no history regarding fever with chills and rigors, and repeated antepartum hemorrhage and the postpartum hemorrhage in the previous pregnancy and in this pregnancy, with no history of blood transfusion and the intravenous iron transfusions. Patient didn't take oral hematinics in this pregnancy. Now, although the blood pressure has not been checked up till now, but there is no history of headache, blurring of vision, epigastric burning, no history of increased frequency of urination, increased frequency of appetite and thirst. She visited for this complaint to the tertiary care for the first time, and now she is advised admission. Her ultrasound and the blood investigations has been carried out, but the further plan of management is not being discussed with her. As previously told, she is gravida 3 para 2 with first born child is a male baby, delivered by normal vaginal delivery at private hospital, and with good Apgar score, breastfed and vaccinated. The second baby was a female baby 3 years back. It was also delivered by normal vaginal delivery at the same private hospital without any antenatal, internatal, and postnatal complications. Breastfed and vaccinated, born with good Apgar score. No history of twin pregnancy, increased blood sugar levels, increased blood pressure levels, or any blood transfusion in the previous pregnancies. Now, regarding the gynecological history, she is having the menstrual cycle of 3 by बस 30. मेरा ख्याल है यहीं खत्म
थैंक यू, थैंक यू। आपने ये हिस्ट्री प्रेजेंट की है, जरा इसकी समरी बोल देंगे आप? जी सर। 28-year gravida 3 para 2 previous normal general deliveries with twin pregnancy and moderate anemia and presented for the gravida 3 para 2 present with the twin gestation and anemia at 30 weeks of gestational amenorrhea. On examination she is having 34-week fundal height, longitudinal cephalic, presentation of both the babies with the multiple fetal parts felt. Liquor amount seems to be adequate. Fetal heart seems to be normal of both twins. And on investigation, she is having the 7 grams per deciliter. बस अभी तक तो हमने वहां तक पहुंचे ही नहीं। मुझे ये बता दीजिए कि इस पेशेंट में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? Sir, she is remain unbooked. She is having the twin gestation. She is having the severe anemia and symptomatic anemia. अभी आपने बोला अपनी हिस्ट्री में मॉडरेट एनीमिया। नहीं सर, सीवियर हो जाएगा, 7 है ना। एक मिनट, मैं आप ही की हेल्प कर रहा हूँ। अभी आपने बोला हिस्ट्री में मॉडरेट एनीमिया, अब आप मुझसे उसी 2 मिनट के अंदर अंदर कह रही हैं सीवियर एनीमिया। नहीं सर, मॉडरेट ही है 7। सुन लीजिए, आपके लिए कि आपने जो टर्मिनोलॉजी पहले इस्तेमाल की है वही कीजिए। अगर आप मॉडरेट उधर बोला, इधर भी बोलिए। अव्वल तो मैं कहता हूं कि आपके पास एक एक्सप्लेनेशन नहीं है तो कि उसको आपने मॉडरेट क्यों कह दिया, अब सीवियर क्यों कह दिया। इसलिए आप दोनों टर्मिनोलॉजी गलत हैं। तो लेकिन अगर आपने एक टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट ही कर ली थी मॉडरेट, तो अब भी मॉडरेट ही रखिए उसको। डोंट जस्ट चेंज विद इन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि हमने कोई उसके अभी टेस्ट नहीं किए, कुछ नहीं किया, तो इसलिए उसके लिए ना मॉडरेट कहे ना सीवियर कहे। शी इज प्रेजेंटेड हरसेल्फ विद एनीमिया। मैं आपसे पूछूं आपने कैसे डायग्नोज बना लिया एनीमिया, फिर आप कह सकती हैं कि ये बातें हैं। तो लेकिन जब आपने डिग्री उसकी डिफाइन कर दी तो फिर मैं आपको यहीं पे रोक लूंगा, इम्तिहान में आपका वक्त ज़ाया करूंगा कि मॉडरेट एनीमिया क्या होता है, वो आपने कैसे कौन से टेस्ट किए थे, कौन से टेस्ट करेंगी, और बात उधर डाइवर्ट हो जाती, डाइवर्शन में हम चले जाते। मोटरवे से उतर के आप लंबा टाइम लेते हो, तो इसलिए ये अल्फाज ना इस्तेमाल करें, ना मॉडरेट, ना माइल्ड, ना सीवियर। आप कहें कि एनीमिया, उसकी एक्सप्लेनेशन है बिकॉज शी हैज सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो फटीग है, उसको डिस्निया होता है, उसको ये होता है उसको। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपके बता दूं, आपने कहा उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था 7 वीक्स पे या अर्लियर ऑन, और उसको कहा गया 2 सैक है। जी सर। आप यहाँ पे नोट के आप जब अल्ट्रासाउंड कहे बताए हुआ, उस वक्त के अल्ट्रासाउंड में क्या क्या पता किया जा सकता था वो बताइए। कि उसको ये बताया गया कि शी हैज गॉट ट्विन सैक्स और दोनों में फीटल हार्ट है, बट दे डिड नॉट स्पेसिफाई हर कोरियोनिसिटी और एमनियोसिटी, ये नहीं बताया गया। अगर आप उसके साथ ये ऐड कर देती तो एग्जामिनर को फट पता चल जाता कि यू आर इंटरेस्टेड कि इस पेशेंट में ट्विंस, तो पता चल गया कि इतनी अर्ली स्टेज पे आए तो हमें ये भी पता करना चाहिए वो डाइकोरियोनिक है, डाई एमनियोटिक है, मोनोकोरियोनिक है, क्या है क्या नहीं, बिकॉज दैट मेक्स द डिफरेंस ऑफ इन कॉम्प्लिकेशंस। आपको पता है, तो आपने नहीं बताया उस हिस्ट्री में कि उसकी उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये आपने फिक्रा बोल दिया। She was informed that she has got a twin pregnancy, but she was not informed any further detail about chorionicity and amnioticity. आपके नंबर बढ़ जाते, आपके नंबर बढ़ जाते। नंबर 2, आपने हिस्ट्री में
ये बताया कि उसको डिस्निया है और फटीग है वगैरह वगैरह, यहीं पे ऐड कर देती हैं आप हिस्ट्री में। ये थोड़ा सा सोच के बेहतर बनाने के लिए आपको तो थोड़ा सा यू शुड अप्लाई योर माइंड। तो वो यहीं पे उसको बेहतर कर देती कि शी कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग एंड no special investigations have been done up till now to make a definitive diagnosis, or no treatment in the form of oral or parenteral treatment has been given to her. इससे एग्जामिनर को फट पता चल जाता यू मीन ओरल आयन और पेरेंटल आयन, और ताकि ये बात आपके लिए एक दो कदम आगे चलती, यहाँ पीछे ना जाता एग्जामिनर, आगे आपने क्या करना है वही बात होती। तो ये, और तीसरी बात, मैं आप कहेंगे मेरी बाल की खाल उतारता है ये तो नहीं सर, नहीं सर, थैंक यू सो मच, आप हमें इतना करेक्ट करते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर गोइंग बैक टू योर ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, आपने पहली प्रेगनेंसी में सीधा बोला फर्स्ट प्रेगनेंसी शी हैड नॉर्मल डिलीवरी और वगैरह वगैरह वगैरह, और बच्चे को कुछ बोला, वेयर एज ये आदत बना ली। दूसरी में बोला आपने, पहली में नहीं बोला। तो पहली दूसरी में जब आप ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री बोलिए नो कॉम्प्लिकेशन और नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल लेबर, नॉर्मल परपीरियम, और फिर ये बच्चा, ये चार बातें बोलनी है हर प्रेगनेंसी में, या कलेक्टिवली कह दीजिए जो पैरा 6 है कि ऑल 6 प्रेगनेंसीज नो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, प्रेगनेंसी नो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, नॉर्मल परपीरियम, और फिर बच्चे जो भी हैं, 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं, हेल्दी हैं क्या है, वजन क्या था, लैक्टेशन क्या थी, ये आप आम बोलते हैं। तो आप अक्सर मिस कर जाते हैं प्रेगनेंसी के मतलब बताने के कि कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं थी, जो इसमें नहीं थी। तो आप बोलिए कि शी इज ग्रेविडा 3 पैरा 2 एंड both normal pregnancies, normal labors, normal परपीरा, और दोनों बेबी ये वो जो भी आपने बोला वो ठीक बोला। ये बातें याद रखिए। तो फिर मैं दोहरा देता हूँ। नंबर 1, जब आप अल्ट्रासाउंड अर्ली बताइए, उसके जो जो इंफॉर्मेशन हो सकती है वो आपको नहीं मिली, तो कहिए कि उस अल्ट्रासाउंड में उस वक्त उसको इतना बताया गया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, फुल स्टॉप। उसको नहीं बताया गया कि कोई फीटल एनोमली है, अगर 12 वीक्स का है, 20 वीक्स का है, उसको नहीं बताया गया कि प्लेसेंटल लोकलाइजेशन क्या थी। जो जो बातें इंफॉर्मेशन आ सकती है वो गिनिए आप, ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसको बतानी, लेकिन नहीं बताई गई। और इसी तरह कि शुरू प्रेगनेंसी में उसकी हीमोग्लोबिन टेस्ट नहीं हुई, अगर हुई तो उसको नहीं बताया गया कि उसकी हीमोग्लोबिन है कितनी, और इफ अगर लो थी तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई टू मेक ए डेफिनेट डायग्नोसिस ऑफ टाइप ऑफ अनीमिया। इतना फिक्रा बोल देंगी तो आपके 6 के 7 नंबर हो जाएंगे। 6 अगर आप 7 नंबर लेते हो तो दूसरी तरफ फेल भी हो तो फिर भी एग्जामिनर को मजबूरन पास करना पड़ता है कि यार इंडी चंगी कुड़ी है, इन्हें 7 8, मैंने जिंदगी में 8 नंबर दिया, 9 किसी को भी नहीं दिया। तो मैंने इम्तिहान लिया है 74 से 2008 तक, जरा हिसाब ला लो कितने साल लिया इम्तिहान, तो मैंने कितने कैंडिडेट्स को पास किया हो। तो लेकिन आपने ये फिक्रे बोलने हैं, समझ गए। वी कम बैक टू द पेशेंट। आप बताइए जी। जी सर एक बात पूछ लो सर, ये भी पूछना है ना कि आपको अगर वो कहे कि मुझे एक ही सैक बताया था लेकिन वो ट्विन प्रेगनेंसी, तो फिर हम उसको कैसे, उसको कहिए कि at that stage she was informed that she had only singleton pregnancy, and whereas in subsequent ultrasound scan twin दूसरा sac also was seen and diagnosed with, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। सर नकल ट्रांसलूसेंसी का मेंशन करना है।
सर जी वो 12 वीक्स वाली पे मेंशन करना है, 20 वीक्स बाई पे स्केलेटल अनोमली या कोई और अनोमली वो मेंशन करना। सर बोलूं मैं, सर ये एक्स्ट्रा तो नहीं होगा? एग्जामिनर ये तो नहीं कहेंगे कि ये इसको ज्यादा आ रहा है शायद? ओ, सर वो मतलब ऑफेंड तो नहीं होंगे इस बात से? मैं ये लफ्ज बोल सकती हूँ नकल ट्रांसलूसेंसी का? वो कहते हैं कि आपने खुद नहीं बोलना, एग्जामिनर खुद पूछे तो आपने बता देना। अच्छा हुआ आपने ये फिक्रा बोल दिया, वेरी गुड। तो आम तौर पर यही टीचिंग है जो आप कह रही हैं कि बहुत ही चालाक कैंडिडेट ना बनो और एवरेज कैंडिडेट बनो। जी डू सर। यू नो, फॉर इयर्स एंड इयर्स मेरा रजिस्ट्रार कभी फेल ही नहीं होता था। जब वो पहली दफा फेल हुआ मैं इतना डिप्रेस हुआ, इतना अपसेट हुआ, मेरा रजिस्ट्रार फेल। वो इन्हीं बातों से, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो इसमें हर्ज क्या है? यू नो इट। ऐसे आपको टिमिड बनाया जाता है, आपको पीछे खींचा जाता है, ना बताओ, ये ना कहना, ये ना कहना ना। जो जैसा मैंने कह रहा हूं आपको आता है सबको, आप बोलो, ये इसी तरह बोलो कि मैं दोहराए देता हूँ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। इट विल बी ए हेल्प, इट विल नॉट बी अ डिसएडवांटेज। कि आप बताएंगे कि 7 वीक्स पे उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, द सोनोलॉजिस्ट saw only one sac and said fetal heart is present और कोई anomaly नहीं नजर आई। फिर 12 वीक्स पे she had अल्ट्रासाउंड, अच्छी से सो अगर 12 वीक्स पे नहीं हुआ तो कहिए उसका 12 वीक्स का स्कैन नहीं हुआ, so we don't know about nuchal translucence, ये अल्फाज बोलिए। उसका 20 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ, कोई स्केलेटल एनोमली नहीं नजर आई। अगर नहीं हुआ बोलिए she did not have ultrasound scan at 20 weeks, so we do not know any skeletal anomaly was present or not. इस तरह से बोलिए। ये चालाक होने की जरूरत नहीं है। चालाक बहुत और इल्म है, इल्म तो महदूद ही नहीं ला महदूद है। आपके मेरे पास तो बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज है, लेकिन ये अल्फाज तो रिलेटेड टू स्कैन, रिलेटेड टू अदर इन्वेस्टिगेशन बोलने चाहिए। जैसे ये पेशेंट शी मस्ट बी एनेमिक, जो कि पहले जल्दी जल्दी प्रेगनेंसीज हैं और फिर अब वो अनीमिया शो कर गया क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी है। तो कहिए कि जब व्हेन शी वाज बुक्ड नो इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हर hemoglobin were carried out, or if they were carried out, she was informed only that the level of hemoglobin which is उस वक्त 8, 9, 10 जो भी थी, and no further investigations were carried out to find out type of anemia। ये फिक्रा बोलेंगी उसकी एग्जामिनर की मां मर जाए जो आपको पास ना करे। ये कोई बात है? दिस इज योर ट्रेजर, योर नॉलेज इज योर ट्रेजर। और आप शादी ब्याह पे जाते हो अपने सारे जेवर पहन के नहीं जाते, उसको लोग शो ऑफ कहते हैं, कोई शो ऑफ नहीं कहता। ये इट्स नॉट बीइंग शो ऑफ। तो इसलिए आई एम सो सॉरी आपने ये पॉइंट उठाया तो मैंने इस तरह से जवाब दिया इसका। लेकिन जो आपके पास नॉलेज है वो एक्सप्रेस कीजिए, वही तो हेल्प करेगा आपको पास होने के लिए। आपके इंफॉर्मेशन के इस लड़की को अनीमिया का ये पता है कि उसका टाइप ऑफ अनीमिया डायग्नोसिस होना चाहिए, फिर सेवेरिटी ऑफ अनीमिया होना चाहिए। फिर अगर आपने उसको कहा उसको अर्ली प्रेगनेंसी में कोई ओरल आयन और पेरेंटल आयन नहीं मिला, तो एग्जामिनर को पता है कि इस लड़की को ये पता है कि ओरल भी दिया जाता है, पेरेंटल भी दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको रोक के पूछ रहे कि ओरल आयन सल्फेट होता है, सक्सिनेट होता है, क्या होता है, या पेरेंटल सॉर्बिटॉल होता है, या क्या होता है। तो वो आपसे एक सवाल पूछे कि आप, आई एम श्योर यू आर विद इट, यू वुड नो इट। जी सर। चलो हम काफी टाइम इस पे लगा दिया, तो वी कम बैक। इस पेशेंट की अब मुझे बोलिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस पेशेंट?
Sir, my patient is having the. एक मिनट, कोई सवाल पूछ रहा है जी? हेलो, ऊंचा बोलिए, मेरे तक आवाज नहीं आई है। सर सवाल तो नहीं पूछ रही, मैं जवाब दे रही हूँ अच्छा, आपकी कोई बात। शोर था पीछे। चलो जी, कोई बात नहीं, फिर बोलिए ये, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस पेशेंट? Sir, my patient is having the twin gestation. She is having the anemia. She is remain unbooked. She is having the symptomatic anemia with the shortness of breath. गुड। Sir, but ये थोड़ा सा इसमें एक फिक्रा और ऐड कीजिए, शी इज ग्रेविटा 3 पैरा 2। सर वो मल्टी ग्रेविटा तो ग्रेटर देन 4 प्रेग्नेंट 4 या ग्रेटर देन 4 का नहीं होता, मल्टी हम इसको भी कह दें, ग्रैंड मल्टी में होता। ये है ना, ग्रेविटा 3 पैरा 2 है। सर ये रिस्क फैक्टर्स हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, रिस्क फैक्टर मैंने कहा, इस पेशेंट की समरी बोली। अच्छा मैंने कब बोला रिस्क फैक्टर बोला? सर प्रॉब्लम्स आपने कहा था, प्रॉब्लम्स। अच्छा, प्रॉब्लम भी कि डेफिनेटली ये बताना, ऑब्स्टेटिक पेशेंट में ग्रेविटा जो भी है वो ग्रेविटा 3 पैरा 2 कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये ठीक है सर। नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन ऑब्स्टेटिक पेशेंट में उसकी मैनेजमेंट में उसकी ग्रेविडिटी पैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी सर। बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शी इज ग्रेविटा 3 पैरा 2 एंड at 30 weeks of gestation and Twin pregnancy. twin pregnancy and symptoms of anemia. Good. ये हो गया। How are we going to manage this patient? सर स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन से करूं? जहाँ से दिल करे करो सही। सर एक्चुअली सर इसकी एग्जामिनेशन भी थोड़ी सी करेक्ट करवा देते आप, या बाद में करवा देंगे सर इसकी एग्जामिनेशन बोलने में। चलो ही बोलिए, फिर एग्जामिनेशन बोल दीजिए ताकि उसमें कोई बात हो तो मैं कहूँ। Sir, my patient abdomen looks protuberant, moving with the respiration with a normally with a centrally placed umbilicus. No previous scar mark were seen over there. No visible pulsation. It was soft and non-tender with a fundal height, fundal height of about 34 centimeter. The lie of the first twin is longitudinal with the cephalic presentation, and the second one is also longitudinal cephalic presentation. Dichroic seems to be adequate. Estimated fetal weight cannot be assessed due to multiple fetal parts, and the fetal heart rate of first twin is 140 to 142 beats, and the second is 130 to 132 beats per minute. ठीक हो गए, ठीक। I'll pass. I will not. सर सेकंड ट्विन का फीटोस्कोप कहाँ पे रखें? सर फर्स्ट का तो अम्बलाइकस के जोर साइड पे रख देंगे, बैक पलपेट करके। वो जी, वो मतलब एटलीस्ट कोई रफ मेजरमेंट 8-10 इंच दूर होना चाहिए एक दूसरे से बस। अच्छा सर उसमें एग्जैक्टली अम्बलाइकस या लेटर साइड पे, एग्जैक्ट अम्बलाइकस पे तो मुझे कम ही सुनता था, मुझे साइड पे रख के ज्यादा सुनता था। नहीं सर दूसरे फीटस का, दूसरे का मैं पूछ रही हूँ, दूसरे का आप 8 से 10 सेंटीमीटर दूर कह रहे हैं। आपने दोनों का बोला लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। सर मैंने तो हाँ बोला है, लेकिन मैं आपसे पूछ कंफर्म करना चाहती हूँ। मैं यही कहूंगा कि एक को लेफ्ट लेटरल साइड पे रख लो, दूसरे के लिए राइट साइड पे रख लो और फिर गिन लो अलग। तो कहते हैं 10 बीट का फर्क होना चाहिए दोनों में कम से कम टू मेक ए डेफिनेट डायग्नोसिस के 2 हार्ट है, तो वो कोई अनइम्पोर्टेंट सी बात है। चले जी, ये आपने एग्जामिनेशन भी कर लिया, फिर आप बताइए हाउ आर यू गोइंग जी? Sir, I want to have the certain investigations. I want to go for the blood group with RH factor, complete blood count with date, including the hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count and platelet in per cubic millimeter. I want to go for the red blood cells indices, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin concentration, and the peripheral blood smear picture. And then I would go for the fasting blood sugar, viral marker status, urine complete examination for microscopy and biochemistry, dating scan for the crown rump length, number of gestational sac, and fetal heart activity. एक मिनट, ये 30 वीक्स पे है, इसका डेटिंग स्कैन होगा? नहीं सर हम तो सारा कुछ लेंगे ना एग्जाम। इसको डेटिंग स्कैन नहीं कहा जा सकता। डेटिंग आपने पढ़ा होगा, अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो उससे एक्सपेक्टेड 10 to 14 वीक्स। हाँ जी सर। हाँ, और जैसे वो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो उसकी रिलायबिलिटी अबाउट एक्सपेक्टेड डेट कम हो जाती है,
और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बहुत ही कम हो जाती है। पहले ट्राइमेस्टर में तो नॉर्मल उसकी जो डेट निकाली गई हम मान लेते हैं, दूसरे में उसको 1 वीक प्लस माइनस करते हैं, तीसरे ट्राइमेस्टर में तो 2-3 हफ्ते को उसकी वेरिएशन हो सकती है। इसलिए उसको ये ना कहिए कि इस 30 वीक्स पे उसका स्कैन और डेटिंग स्कैन ना कहिए। नहीं सर, मैं उसकी तो उसका अब आप जो कहेंगे उसका ग्रोथ स्कैन कहेंगे कि वो बेबीज आर ग्रोइंग रेगुलरली, वो रेगुलर हर 2 हफ्ते बाद, हर हफ्ते बाद जो भी करेंगे वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है कि नहीं, वो कह सकती हैं आप, लेकिन डेटिंग स्कैन नहीं कह सकती आप। डेटिंग स्कैन इज फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जी सर, यू आर वेरी राइट सर। मैं वैसे कह रही थी जो मैं इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर से लूंगी उसमें तो रेटिंग स्कैन लूंगी ना सर, मैं तो वो बता रही थी अभी। और वो आप मतलब दोनों बातों में फर्क, आप कहेंगी मैं ये टेस्ट करूंगी उसमें डेटिंग नहीं कहोगे, अलबत्ता अगर इसका डेटिंग स्कैन हुआ है वो, आई विल रिव्यू फॉर दैट। जी सर। अगर इसकी हेमोग्लोबिन पहले हुई है वो बता दीजिए मुझे, या कोई और इन्वेस्टिगेशन एनीमिया रिलेटेड हुई है तो वो बता दीजिए मुझे, इस तरह से कहेंगी आप। जी सर, सही। हाँ Okay sir, then I would go for the anomaly scan if carried out। इसमें तो खैर नहीं हुआ था। हाँ जी Then I would go for the recent ultrasound जी for the fetal biometry of both the fetuses, including हाँ, the biparietal diameter, femur length, हाँ, estimated fetal weight, amount of liquor, presentation, and lie and presentation of both the fetuses, sir, bus, and the presence of any gross fetal anomaly। बिल्कुल ठीक है, और लफ्ज इसमें ऐड कर लीजिए क्योंकि ट्विन्स हैं, एनी discrepancy in the size of the two fetus, ठीक है सर। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस स्टेज पे, क्योंकि अगर दोनों फीटस की डिस्क्रिपेंसी है इन द साइज या डिस्क्रिपेंसी है इन द अमाउंट ऑफ लाइकर अराउंड ईच, तो फिर वो मोनोकोरियोनिक ट्विंस की जो डिफिकल्टीज हैं हम उस जोन में जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये कितनी डिस्क्रिपेंसी है वो फिर मेजरमेंट से पता चल जाएगा। यहाँ किसी ने लिखा है कि अगर दोनों की मेजरमेंट में 3 हफ्ते का डिस्क्रिपेंसी हो वो सिग्निफिकेंट है। तो अगर मतलब जितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी सर होगी, जो बुक्स में लिखा हुआ है 25% नॉर्मल होती है मोनोकोरियोनिक में, इससे ज्यादा हो तो फिर जो है वो होगी मतलब काउंटेबल होगी। लेकिन सर 25% हम किस तरह से तो उसको 25% ट्विंस में, यानी अगर ये मोनोकोरियोनिक है, देयर इज 25% चांस कि दोनों की ग्रोथ बराबर बराबर हो रही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपको आइडेंटिकल ट्विंस नजर नहीं आते चलते फिरते? नहीं सर सॉरी, मैं आपसे सही तरह शायद पूछ नहीं पाई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 25% IUGR का चांस तो नॉर्मल है मोनोकोरियोनिक में, इससे ज्यादा तो हो। वो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, आप फिक्रा आज अडॉप्ट कर लीजिए। अगर ट्विन प्रेगनेंसी आप कहें जी, ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी और लेबर आर इंक्रीज्ड इन ए केस ऑफ ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल में यहाँ किसी ने ट्रिपलेट का बार बार मुझसे पूछा लिखे, तो अगर मैं सिंपल अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, वही आप इम्तिहान में भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि ग्रॉस के ट्विन में जितनी कॉम्प्लिकेशन है, चूंकि बच्चे 2 हैं वो दुगनी हो जाती हैं। ट्रिपलेट्स में वो 3 गुना है, 3 बच्चे हैं 3 गुना हो जाती है कॉम्प्लिकेशन। जैसे अगर प्री एक्लैम्सिया है, अगर 5 to 15% है, ट्विंस में डबल हो जाएगा, 10 to 30% हो जाएगा, ट्रिपलेट में अप टू मोर देन 50% हो जाएगा। तो ये आसान सी टिप है, ये याद रखिए कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी इन ट्विन प्रेगनेंसी आर ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ सिंगल प्रेगनेंसी। उसमें अब आपको 1 2 3 नाम लेने की जरूरत नहीं कॉम्प्लिकेशन, उसमें पॉलीहाइड्रेमनस भी है, उसमें ओलिगोहाइड्रेमनस भी है, उसमें PAH भी है, प्री एक्लैम्सिया भी है, अगर IUD, मेल फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज देयर। और वो
उसका रिस्क जो है डबल हो जाता है। ये आज की टिप है आपको आसान करने के लिए कि इन ए केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी द कॉम्प्लिकेशंस of pregnancy, they increased by 2 or by 3 depending upon multiples जो वहाँ मौजूद कितनी है। चलें आगे चलिए। तो इस पेशेंट में तो आपकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि पहले तो हमें पता नहीं है कि मोनोकोरियनिक है कि डाइकोरियनिक है, और अभी तक किसी ने बताया नहीं कि वो जो हुई लेटर अल्ट्रासाउंड में उनके दरमियान जो सेप्टम है वो कैसा है क्या नहीं, तो वी डोंट नो। लेकिन क्लिनिकली आपने जो बताया मुझे कि दोनों बच्चे दे आर ग्रोइंग ओके। चलिए, so in this case it seems both are growing all right. Ultrasound will confirm their relative growth and amount of liker around each other। ये फिक्र आप बोलिए ताकि उसको पता हो कि आप कॉन्शियस हैं मोनोकोरियनिक में क्या हो सकता है। जी चले सर। देन सर फर्दर मैनेजमेंट पे जाऊँ, मैनेजमेंट बताऊँ? जी बोलिए ना, बोलिए आप बिल्कुल। जी ओके सर। सर इनके स्कैन में जो है डाइकोरियोनिक थे एंड दे सर 30 वीक्स के पैरामीटर्स थे सर, बाकी सब चीजें ठीक थी सर। आगे इस स्टेज पे 30 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करके कहा डाइकोरियोनिक, तो व्हाट डू यू थिंक कि उन्होंने डाइकोरियोनिक क्यों कहा इस 30 वीक्स पे? स्टोन पहले पता नहीं था, अब अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ है तो उन्होंने कहा डाइकोरियोनिक। जी सर इट कुड बी बिकॉज ऑफ द सर डाइकोरियोनिक बिकॉज 2 प्लेसेंटा आर विजिबल। हाँ, वेरी गुड माशाल्लाह। तो आप बताएंगी वो बातें जो डाइकोरियोनिक में होती हैं कि प्लेसेंटा आर 2 एंड दे आर सेपरेट। दूसरी बात possibility, so gender difference, why have they made this diagnosis के so gender का भी डिफरेंस हो सकता है। जो एक्सेलेंट, एक पहला पॉइंट आपने बोला 2 सेपरेट प्लेसेंटी, दूसरा बोला 2 डिफरेंट सेक्सेस, ठीक है ना? जी सर। तीसरा सर जेंडर का हो गया, और सर 2 प्लेसेंटा। बाकी सर जो मेम्ब्रेन थिकनेस होती है वो मेम्ब्रेन इन बिटवीन, थिक मेम्ब्रेन, क्योंकि मोनोकोरियोनिक के हिसाब से तो और मोनो अम्नियोटिक हो सकता है बीच में सेप्टम ही कोई ना हो, या सेप्टम वेरी थिन, ओनली एमनियोन, नो कोरियोन। सो थिक सेप्टम हो तो लाइकली है कि डाइकोरियोनिक है, थिन सेप्टम हो तो इस पॉसिबिलिटी है कि मोनोकोरियन। ये 3, चौथा के बोथ आर इक्वली ग्रोइंग, क्योंकि ये सारा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन और वो सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो ज़्यादा मोनोकोरियनिक में होती हैं। डाइकोरियनिक में लाइकली है कि वो दोनों इक्वली ग्रोइंग होंगे। तो ये 3-4 बातें। लैम्डा, हाँ वेरी गुड, थैंक यू मैडम। लैम्डा साइन अल्ट्रासाउंड पे वो कंफर्म करता है कि ये डाइकोरियनिक। सर एक क्वेश्चन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करेगा ना सर, आगे तो नहीं करेगा? जी सर वो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही लैम्डा साइन देखेंगे ना, या थर्ड में भी देखेंगे? सेकंड थर्ड में भी देख सकते हैं? मेरा ख्याल है ये सेकंड तक तो वैलिड है, तो आगे नहीं। लेकिन मेम्ब्रेन की थिकनेस तो कह दिया ना हमने कि थिक सर वो ग्रेटर देन 2 mm तो फिर होगी, तो फिर वो तो आपसे पूछा जाए कि अब कैसे डायग्नोसिस बना सकती हैं, आपने 3 बातें बोलनी है। प्लेसेंटे, फिर उसके बाद दोनों बच्चों की ग्रोथ एंड सेक्स, तीसरा मेम्ब्रेन इन बिटवीन, और ये दे विल हेल्प एट दिस स्टेज टू मेक ए डायग्नोसिस कि मोनो है कि डाइकोरियनिक। चलिए यही तो हो गया। फिर और क्या, मैंने एक तो डायग्नोसिस कर लेंगे आप कि जी ये। अब हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? Okay, sir. After the completion of all of the investigations, I would counsel my patient regarding the diagnosis that she is having the 30 weeks gestational amenorrhea with twin pregnancy and moderate anemia.
My aims of management is to optimize the hemoglobin status of my patient. एक मिनट कुड़िए, देखा ना, आप भूल जाती हैं। आई एम श्योर कि तुम अपनी सस दा क्या ना भुली है, ते मेरा बेशक भूल जाओ, लेकिन मेरा भूलना भी तो रिस्की है इम्तिहान में। आपने फिर कहा मॉडरेट एनीमिया। हमने तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की उसकी। मैंने कहा ना, आप लफ्ज मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर ना इस्तेमाल करें। ठीक है सर, नहीं करूंगी आंदा। ठीक है। 2 दफा तो कहता है, तीसरी दफा फिर कहने की जरूरत है। नहीं, वो एक्चुअली सर क्योंकि वो 7 HB थी ना, तो मैंने का शायद मॉडरेट वो नहीं, शायद मॉडरेट, तभी तो फिर मुश्किल से पै जानी हो। ठीक है सर, नहीं करेंगे। आपने नहीं कहना कि जब तक आपके पास उसकी रिपोर्ट नहीं आती। रिपोर्ट देख के आप कह सकती कि ये 7 ग्राम। रिपोर्ट मेरे पास है ना, इसलिए तो कह रही हूँ। ना, तुम्हारे पास है, मुझे तो नहीं बताई ना। मुझे तो अभी तक डिस्कशन में आई ही नहीं उसकी रिपोर्ट। जी सर, सही। आपने तो फॉलो करना है जैसा जैसा। आप ये तो नहीं कह सकती ध्यान में कि मैंने उन्हें मेरी दोस्त है जो यहाँ सुपरवाइजर है, वो सारा कुछ बता गई है। विल यू से दैट? नो सर, सही। फिर नहीं कही है तो आई एम सॉरी कि आपने मुझे आपको सख्ती से कहना पड़ा। लेकिन हमारी ट्विन प्रेगनेंसी है, 30 वीक्स पे है और अनीमिया है। चलो जी आगे चलो, तो आगे बात खत्म कर लें। Yes, sir. My aims of management is to optimize the hemoglobin status of my patient by the typing of anemia and then the further correction. And I will involve the multidisciplinary team involving me as an obstetrician along with the sir, I will counsel my patient regarding the dietary habits. As she is having the 7 gram hemoglobin per deciliter hemoglobin, so I will tell her, and she is having the symptoms of shortness of breath and easy fatigability. So I will easy fatigue. So I will. Sir, एक second बस. Then I will say that I will transfuse her with 1 pint of Paxil volume to improve the symptoms, and then I will review her next day for the improvement in the symptoms. The symptoms are getting improved. Then I will calculate the iron dose of my patient by the Gansini formula. She is having a deficit of 3 gram. I will calculate, and I have already calculated by apply the formula. She is having the deficit of 4 grams, so I will transfuse her 4 intravenous iron sucrose transfusions. And then I will counsel her regarding the dietary intake of increased intake of meat, poultry, and eggs, and to deworm my patient by the tablet. For the education of others, मैं चाहूँगा आप ये जो बोला है इसको दोहरा दे प्लीज। अनीमिया रिलेटेड की बोलिए। Sir, as my patient is having the 7 gram per deciliter hemoglobin, initially I will do the typing of anemia. She is having the nutritional deficiency anemia, iron deficiency anemia. So I for the improvement of the symptoms, I will transfuse her with the Paxil volume. And the other day I will visit her, inquire her about the improvement in the symptoms. If the symptoms get improved in 2 to 3 days, then I will calculate the intravenous iron transfusion by the Gansini formula, required HB minus the required HB minus the current HB of the patient. यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। बड़े ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये बात जिस तरह ये डॉक्टर साहबा ने कही है इस तरह ना कहें, इस तरह ना कहें। क्या वजह है? ये अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रैक्टिस बन गई है कि वो अनीमिया 10 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम, इसको पेरेंटल आयन दे दो, इंट्रावेनस या टोटल डोज ये दे दो। ये हमारी अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस सी हो गई है, इसलिए आपकी ये आदत बन गई है। अब आपने इसको आप ना बात समझ आए तो मुझे ये 2-3 दफा दोहरा के सुन लीजिए, क्योंकि
अनीमिया की आपकी मैनेजमेंट ऐसी इम्तिहान में देते हो तो फेल हो जाते हो। तो आपने कहना है कि इन दिस पेशेंट, जैसे इन्होंने बोला, इसकी हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है और शी इज गॉट सिम्टम्स ऑफ अनीमिया, जिसमें शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो इन्होंने सही बोला। उसको रिलीव करने के लिए मैं इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दूंगी। मैं थोड़ा सा आपके साथ इत्तेफाक नहीं, लेकिन फिर भी वो से बात आपकी सही कहूँगा कि ब्लड, होल ब्लड दिया जाए कि उसको पैक सेल दिया जाए। अगर आपने एक बैग देना है तो होल भी दिया जा सकता है, होल भी दिया जा सकता है। उसका एडवांटेज है कि तो उसमें कुछ प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं, ये होता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा देना है फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर उसको पैक्ड सेल, पैक्ड RBCs कहा जाता है, पैक्ड सेल दिए जाए, फिर आपकी बात सही है। लेकिन ये बात क्रिटिकल नहीं है। नहीं, ये तो मैंने आपकी बात मान भी ली कि आप एक पैक दे देंगी और उसके बाद अगले दिन रिव्यू करेंगी, उसकी सिम्टम्स ठीक हो गई। अगर ठीक नहीं हुई तो उसको एक और पैक दिया जा सकता है, क्योंकि 7 ग्राम को जब आप एक बैग देते हैं, मैक्सिमम इंक्रीज हीमोग्लोबिन की 1 ग्राम या उससे भी कम होती है, तो 7 का 8 हो जाएगा। तो लेकिन हम अगले दिन उसका 8 को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उसकी सिम्टोमेटिक रिलीफ को इम्पोर्टेंट समझते। इन्होंने जैसे कहा कि आई रिव्यू हर नेक्स्ट डे कि उसकी सिम्टम्स इम्प्रूव होगी, लेट्स से कि इम्प्रूव होगी। अगर नहीं हुई तो देन देयर इज रूम फॉर सेकंड ट्रांसफ्यूजन। तो उसको 1 या 2 ऐसा बोलिए, इसको 1 या 2 हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे टिल हर सिम्टम्स आर रिलीव्ड। 1 पहले देंगे, रिव्यू, जरूरत हुई तो दूसरी भी दे देंगे। उसके बाद आप गलत हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा जी मैं उसका आयन कैलकुलेट करूंगी, डेफिशिएंट कितना है, फिर 4 इंट्रावीनस टीके लगवा दूंगी उसको ना। यहाँ पे आप फेल होगी। यहाँ पे आपने फिक्रा बोलना है, याद से बोलना है कि आफ्टर दैट आई विल रिव्यू हर कंप्लायंस विद ओरल आयन। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे खत्म कर लेंगे, फिर आप बोलिए रिजवान अहमद। तो लेकिन मुझे पूरा देन आई रिव्यू हर कंप्लायंस विद ओरल आयन। अगर वो अब तक लिया ही नहीं, अगर वो नॉन कंप्लायंट है, इरेगुलरली लेती है, या उसको साइड इफेक्ट्स हैं विद ओरल आयन, फिर आपकी बात सही है। ये इस तरह से बोलना है आपने, आई विल रिव्यू हर कंप्लायंस विद ओरल आयन। अगर उसको साइड इफेक्ट्स हैं, वो इरेगुलरली लेती है और शी इज नॉट कंप्लायंट विद योर इंस्ट्रक्शन, फिर आपकी बात सही है, फिर मैं पैरेंटल आयन दे दूंगी इंट्रावीनसली, टोटल डोज या इंटरमिटेंट इंट्रावीनस इंजेक्शंस। एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह नहीं बोलते तभी एनीमिया में फेल होते हो। तो आपने कह दिया ना कि मैं उसको ब्लड दूंगी और फिर उसको पैरेंटल आयन दे दूंगी, आप फेल हो गए, आप फेल हो गए हो, बिलीव इट। क्योंकि ये नहीं है सही रूट जो हमने क्लिनिकली अडॉप्ट किया हुआ है, गलत किया हुआ है। आपने ये फिक्रा बोलना है कि आफ्टर गिविंग अ ब्लड आई रिव्यू हर कंप्लायंस विद ओरल आयन। और अगर नहीं तो क्योंकि फिर आपने ये फिक्रा बोलना है, द स्पीड ऑफ रिकवरी वेदर TDI, वेदर इंटरमिटेंट इंजेक्शंस, वेदर ओरल, इससे ये फिक्रा बोल के आगे चलना है आपने, ताकि एग्जामिनर को पता हो यू आर नॉट बायस्ड अगेंस्ट ओरल, यू आर नॉट पोस्ट जो क्लिनिकली हम करते हैं।
मैं दोहराता हूँ, फिर मुझे वो रिजवान अहमद कुछ कहना चाहती थी, तो फिर मैं उनकी बात सुन लूँगा। मैं ही कहूँगा, इन दिस पेशेंट because she has got symptomatic anemia and hemoglobin is 7, I'll give her, after confirmation of diagnosis, I'll give her whole blood और पैक्ड सेल्स। वो मैंने कह दिया, अगर एक देना है तो एक होल भी दिया जा सकता है, 2 देने हैं तो पैक्ड, बिकॉज यू डोंट वांट टू ओवरलोड द हार्ट। लेकिन उसके बाद बोलना है, आई विल रिव्यू हर कंप्लायंस विद ओरल आयरन। अगर ये हुआ है, उसको साइड इफेक्ट्स है, इरेगुलरली लेती है, लेती नहीं है, फिर मैं उसको पैरेंटल आयरन दूंगा। लेकिन अगर लिया ही नहीं है 30 वीक्स, यू हैव सफिशिएंट टाइम कि उसको ओचो। और दूसरा, हमने मान लिया है कि ओरल की और पैरेंटल की स्पीड ऑफ रिकवरी इज सेम, इसलिए आपका जवाब गलत हो गया कि पैरेंटल दूंगी, आपने ये फिक्रा बीच में नहीं डाला। अगर वो कंप्लायंट है तो मैं उसको ओरल दे दूंगी, स्पीड ऑफ रिकवरी सेम। जी रिजवान साहब, आप बोलिए, आप कुछ कहना। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ट्विन प्रेगनेंसी में ड्यू टू यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो सर नॉर्मली मतलब हमें हर पेशेंट में मिलती है जो ट्विन के साथ होती है, जिनका जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि 30 वीक्स पे 34 की फटल हाइट है। एक मिनट, हर 34 वाली डिस्टिंक्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ डिस्निया के साथ उन्होंने हीमोग्लोबिन भी तो साथ बता दी है ना सर। वो तो हमें एग्जामिनर जब एचबी देगा सर, हमें तब पता चलेगा। और आपने जैसे बताया, उसके बाद ही बोलेंगी आप मैनेजमेंट। जी जी सर, जैसे आपने बताया है कि 1 पिंट ऑफ ब्लड में हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, उसके बाद हम उसकी सिम्टम्स को रिव्यू करेंगे नेक्स्ट डे पे। लेकिन सर अगर उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब मेरा क्वेश्चन ये था पूछने का कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट कि उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज रिलेटेड टू द ट्विन और विद अनीमिया, और बाद में अगर वो सर 1 पिंट ट्रांसफ्यूज करने के बाद हम मतलब क्या प्रैक्टिकल ऐसे मतलब हमें कैसे पता चलेगा, मेरा ये क्वेश्चन था सर। सिंपल सा है ये तो, कि यहाँ पे दोनों बातें हैं कि देखो ना, अगर उसकी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम होती और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती, फिर उसको ब्लड देने से कोई फर्क नहीं पड़ना था, उसकी सिम्टम्स वुड नॉट हैव रिलीव्ड। फिर वो बिकॉज ऑफ ट्विंस या बिकॉज ऑफ हार्ट या बिकॉज ऑफ लंग थी उसकी जिसने, फिर हम उधर जाते। यहाँ फोकस ऑन टू, क्योंकि उसके साथ एक हमें डायग्नोस्टिक क्लैरिटी के साथ मिल गई फिगर 7 ग्राम, तो इसलिए हमने उसको मान लिया। वैसे तो आपकी बात सही है कि हम ब्लड देने से पहले उसका हार्ट चेक करेंगे, उसके लंग चेक करेंगे कि कहीं हार्ट फेलियर तो नहीं है। वो हमने क्लिनिकली रूल आउट किया हुआ है, फोकस ऑन टू एनीमिया ही रखते हैं। तो इसलिए ये बात मेरी आप इस तरह से, फिर मैं दोहरा देता हूँ, फिर बात को आगे चलाएंगे कि व्हेन यू गेट अ केस ऑफ एनीमिया, वन, यू विल कंफर्म द डायग्नोसिस के टाइप ऑफ एनीमिया है क्या है, और 90% चांस वो आयरन डेफिशिएंसी ही होगा, बड़ा थोड़ा सा चांस है थैलेसीमिया या कुछ और हो, तो लेस देन 5%। और अगर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंफर्म हो गया बाय हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, आज हम उसकी डिटेल में नहीं है कि सीरम आयरन करवाना है, बाइंडिंग कैपेसिटी करवानी है, क्या करवाना है, फेरेटिन करवाना, ये आप पढ़ लीजिए। लेकिन हमने कंफर्म कर लिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो फिर उसको सिम्टम्स हैं तो विल ट्रांसफ्यूज 1 बैग इररिस्पेक्टिव स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, 30 वीक्स, 34 वीक्स, 30। तो जिसको सिम्टोमेटिक एनीमिया है उसको हम ट्रांसफ्यूज करेंगे 1 या 2 बैग, और प्रेफरेबली पैक सेल्स, तो 2 देने। तो उसके बाद रिव्यू करेंगे, सिम्टम्स रिलीव हो गई तो फिर हम रिव्यू करेंगे उसको आयरन कैसे देना है, और वो मेरे वाला फिक्रा बोलना ज़रूरी है, और टू डिसाइड कि ओरल आयरन देना है कि पैरेंटल देना है। चूँकि ये फिक्रा बोलना है आपने, फिर द स्पीड ऑफ रिकवरी विद बोथ इज सेम। ये नहीं कि आप 34 वीक्स पे 36 वीक पे तो क्या हो जाएगा। तो लेकिन वो 34 36 वीक्स पे मैं आता हूँ, 30 वीक्स पे
we'll find out her compliance with oral iron, and then if she is not compliant, I'll give her parenteral iron. If she is not given parenteral iron, she has not oral iron, she has not tried that, then I'll prescribe oral iron, ferrous sulfate, ferrous fumarate, succinate, जो भी वो बेशुमार प्रेपरेशंस हैं वो दूंगा। सर एक बात पूछनी थी जी। सर, यू आर वेरी राइट कि हमें इसमें ओरल को प्रेफर करना चाहिए, बट माय पेशेंट इज हैविंग द ट्विन गेस्टेशन एंड विद द ट्विन इज हैविंग द ऑल ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस गेट इंक्रीज्ड इन दिस मल्टीपल गेस्टेशन। कॉम्प्लिकेशन एक ही है, लेबर का चांस, एब्रप्शन का चांस, पीपीएस का चांस, सब ये सब चीजें हैं, तो मैं उसको आईवी आयरन ना ये जस्टिफाई नहीं करती आपकी बात। तो कॉम्प्लिकेशंस आर टॉप ऑफ द लिस्ट पे प्री टर्म डिलीवरी, प्रीमेच्योर, तो वो जनरली स्पीकिंग वो 40 वीक्स के बजाय 38 वीक्स हो जाएगी, फिर भी आपके पास 8 वीक्स है, फिर भी आपके पास मोर देन 6 वीक्स हैं, तो इसलिए वो जस्टिफाई। बाकी रह गया एब्रप्शन, वो उसका इंसिडेंस इतना है, से ही एक कॉम्प्लिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन उसका इंसिडेंस उतना नहीं है जितना प्री टर्म लेबर का है। तो इसलिए आप आज ये मेरी बात मान जाइए, चूंकि एनीमिया में आप फेल इसी तरह ही होते हैं। लेकिन सर अगर यही पेशेंट हमारे पास 36 वीक्स सपोज करें 35-36 वीक्स पे आती, डाइकोरियोनिक को हमने 37 पे सर प्लान करना था, फिर तो हम इंजेक्टेबल आयरन ही देते ना। जी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा ना मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, वो उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास और है। सर फिर अगर एग्जामिनर ऐसे कह दें कि ठीक है तुमने उसको ओरल पे डाल दिया, डिस्चार्ज करके घर भेज दिया, दूसरे तीसरे दिन वो दोबारा से आ गई है, उसको और भी ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तुमने उसको फॉलो नहीं किया, वो तो अनबुक्ड रही है, कभी डॉक्टर के पास गई नहीं, तुम्हारे पास गलती से आ गई थी तो उसे आईवी आयरन लगाते। और तो फिर मैं उसको दाखिल कर लूँ, दाखिल करके देखूंगी। सर शी हैज रिमेन अनबुक्ड ना, वो कभी आई नहीं हॉस्पिटल, तो पूरा 8 ये महीने गुजर गए। आपने उसको ये इलाज दिया, वो घर भेज दिया, वो विद इन ए वीक वापस आ गई कि मैंने तो हल्दी सा चढ़ता है, तो फिर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो दाखिल करके होना चाहिए, क्योंकि आप उसको ये नहीं कह सकते एक हफ्ते बाद उसको 2 बैग और लगा दो, वो फिर ओवरलोडिंग की कॉम्प्लिकेशंस ये वो आ जाती हैं, एडमिशन की कम होती हैं कॉम्प्लिकेशन, तो इसलिए आप उसको एडमिट कर। सर आ गई समझ में बात। ये लेकिन सर अगर कर लेंदे हो तुसी वो ये सर अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो तो अगर पेशेंट सिम्टम्स दे रही है सर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, फटीग है सर, उसको सारे जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके बावजूद हम उसको ओरल आयरन देंगे? उसके बावजूद ओरल आयरन पे डालेंगे सर? तो जी पहले तुझे उसको ब्लड लगा जो दिया ना बाबा। मैं वैसे आप सारा जो जितने सवाल पूछो मैं तो जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन ये हमारे पास 5-10 मिनट रह गए हैं, मैंने ये कंप्लीट तो कर लेंदे हो कुड़ियों, बाकी बेनिफिट के लिए कि इम्तिहान में बोलना कैसे आपने, मैं बोलूं सर? जी सर, जी सर। ये मैं बोल ये रहा हूँ मैडम कि 30 वीक्स तक के अनीमिया के लिए जी वो पेशेंट आए विद अनीमिया और उसके सिम्टोमेटिक है तो सिम्टोमेटिक के लिए ब्लड देंगे 1 या 2, और उसके बाद आपने फिक्रा बोलना है। कितनी दफ़ा मैं ये अल्फाज कह चुका हूँ, आपने फिक्रा बोलना है कि हम रिव्यू करेंगे हर कंप्लायंस विद ओरल आयरन। अगर उसने लिया ही नहीं, दिया ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर हम उसको ओरल आयरन कहिए, इम्तिहान में कहिए ओरल आयरन देंगे। किताब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, मैं हट के किताब से नहीं बोल रहा। तो ओरल आयरन दीजिए और फिर रिव्यू कीजिए उसको हफ्ते बाद के वो ले भी रही है कि नहीं ले रही, फॉलो कीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर अगर वो उसके बाद आती है, लेट्स से 32 वीक्स पे आती है, मैंने 2 हफ्ते ही ऐड किए, 32 वीक्स या बियॉन्ड उससे आती है, तो फिर हम इसी तरह सिम्टम्स हैं, इसी तरह ही हीमोग्लोबिन है उसकी इम्तिहान में आपको पेश होती है, तो फिर आप कहिए कि मैं इसको ओरल आयरन, ये वही फिक्रा बोल के वी कुड हैव गिवन हर ओरल आयरन, बट इन केस ऑफ non-compliance we will have no time left
टू करेक्ट दिस एनीमिया, इसलिए ये वजह है कि मैं इसको पैरेंटल आयन दूंगी। मैं दोहराता हूँ, आप यही पेशेंट 30 या 32 वीक्स पे आई, अब उसको ब्लड दे दिया आपने फिक्रा बोलना है आफ्टर 32 वीक्स, 32 33 वीक्स कि वी हैव नो टाइम लेफ्ट टू ट्राई कंप्लायंस फॉर ओरल आयन। इसलिए वो अगर 3 हफ्ते और गए तो फिर तो बात ही खत्म होगी। तो मैं इसको इस वजह से पैरेंटल आयन दूंगी। वो फार्मूला जो डॉक्टर सबा बोल रही थी, 2-3 फार्मूले, किसी फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए, आप कैलकुलेट करके टीडीआई दे दीजिए, या तो वो तो देना है डेक्सामेथासोन, तो वो तो और बात है। तो वो लंग मैच्योरिटी के लिए तो आपने देना है। ये इसमें प्री टर्म डिलीवरी होती है, इसलिए उसको 36 वीक की बजाय 34 वीक्स पे दे दीजिए डेक्सामेथासोन। लेकिन फिर मैं 32 वीक्स के बाद आती है correction of her dyspnea by transfusion, then parenteral iron, with this explanation that we have no time to test her compliance. तो और तो तीसरी बात ये है कि अब आगे 36 वीक्स पे वही सिम्टम्स, वही, तो इस पेशेंट को हम ब्लड देंगे, एडमिट रखेंगे और साथ 2 बैग फ्रिज में रखेंगे। ये कहने हैं अल्फाज, ये 4 नहीं लगा देने ताकि हरियरली करेक्ट हो जाए, फिर ओवरलोड से मर जाएगी। तो इसलिए उसको भी 2 बैग देंगे, 2 फ्रिज में रखेंगे और साथ पैरेंटल आयन भी देंगे। मैं टाइम खत्म होने वाला है तो मैं दोहराता हूँ, अनीमिया का पेशेंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अनीमिया में आप देयर इज गुड मोर देन 50% चांस कि आपका पेशेंट एनीमिक होगा, चाहे उसको कोई और प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारे 50% इज द इंसिडेंस ऑफ अनीमिया। तो अगर आपका एनीमिक का पेशेंट है तो नंबर 1, अगर 30 वीक्स से पहले है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस और ओरल आयन पे डालेंगे। अगर वो सिम्टोमेटिक है ब्लड से करेक्ट करेंगे। और नंबर 2, अगर 30 वीक्स से बियॉन्ड 32 वीक्स है, फिर हम उसको ओरल पे, ये फिक्रा बोल के बोलिए ओरल, क्योंकि she might be non-compliant, then we lose that period, that 2 or 3 weeks, तो इसलिए मैं सीधा अभी से पैरेंटल आयन पे डाल दूंगी। नंबर 3 कि अगर वो 36 वीक्स के पास आती है सिम्टम्स, 2 बैग in the patient, 2 बैग in the fridge and admit the patient and keep the patient, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन जो आप लोगों ने बोली, वो फिर मोड ऑफ डिलीवरी आज डिस्कस नहीं कर रहे कि वो कैसे होगा, वो तो डिपेंडेंट ऑन अदर कॉम्प्लिकेशन प्लस प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ट्विन और वगैरह वगैरह। जी अब कुछ 10:30 हो गया। सर ये बात सही है कि Thank you अगर so much. कहते हैं कि सर ये बात सही है कि जब आप पेशेंट को ओरल आयरन पे डालते हैं तो साथ आपने फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी देना होता है। हाँ, वो देना बिल्कुल ठीक है आपने कहा। तो उसको फॉलिक एसिड भी साथ दीजिए 5 मिलीग्राम डेली, और विटामिन B12 जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर दीजिए। और कैल्शियम के साथ ना दीजिए अगर ओरल आयरन दिया है, क्योंकि कैल्शियम डज नॉट हेल्प अब्जॉर्प्शन बल्कि इंटरफेयर्स विद अब्जॉर्प्शन। तो अगर कैल्शियम देनी है तो अलग दीजिए। और इसको जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर कोई सर पेशेंट कर मुझे रही ये है, पूछना था कि एक गायनी की पेशेंट है, मतलब सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के साथ फाइब्रॉइड और बहुत ब्लीड करती है। लास्ट 3 मंथ बैक भी उसको 3 पैक सेल लग चुके हैं और अभी फिर वो 7.5 HP के साथ आई है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ। सर मुझे ये अगर हम उसकी मायोमेक्टमी प्लान कर रहे हैं तो 7.5 HP को हम अपने टारगेट तक 11 तक ले जाने के लिए हम उसको ट्रांसफ्यूज ही करेंगे? जी ये मैंने बिल्कुल, पूछना और था। साथ उसको कोई GnRH चैनल लॉक देंगे या कोई और मेडिसिन देंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। सर तो उसके लिए तो फिर हमें अभी सर्जरी नहीं प्लान करनी होगी, हमें उसे 3 मंथ देने पड़ेंगे, फिर सर्जरी तो अभी करनी है।
नहीं, मैं समझा नहीं, क्या करना पड़ेगा? सर सर्जरी प्लान की हुई है उसकी, मायोमेक्टमी हाँ, प्लान की है, वो पेशेंट एडमिट है। जब आप GNRH चैनल लॉक दे दोगे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, तो फिर यू हैव ऑल द टाइम 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 6 हफ्ते पोस्टपोन कर दें और उसमें उसका बिल्डअप करें, ताकि फॉर सर्जरी हर हीमोग्लोबिन शुड बी मिनिमम 10 ग्राम्स, उससे ऊपर ही होनी चाहिए। WHO तो 11 कहता है। तो और फिर ही आप सर्जरी कीजिए। तो स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम फाइब्रॉइड्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर सर्जरी, आंसर इज इंजेक्शन डोलाडेक्स। ओके सर और SOGP की जो भी डिस्कशन होती है अबाउट एनीमिया, वो हर बार यही कहते हैं कि IV आयरन पे ज़्यादा वो लोग मतलब बता रहे होते हैं, और यहाँ तक भी कहा गया है कि 28 वीक पर एडमिट करके पेशेंट का जितना भी आयरन कम है वो कैलकुलेट करके वो IV आयरन में दे दें प्री। तो ये पता नहीं SOGP की गाइडलाइंस होगी, लेकिन मैं आपको कहता हूँ किताब में जो लिखा हुआ है या जो आपके इम्तिहान में कबूल है, कबूल है। जब आपकी शादी हुई थी 3 दफा कहा था ना कबूल है। यस सर। तो फिर इसी तरह ये जो किताब में लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए। SOGP ने तो कोई ऐसी गाइडलाइन मेरा ख्याल पता नहीं बनाई भी है कि नहीं बनाई, लेकिन आप प्लीज फॉलो द बुक। अब मैंने जो आपको बताया है ये किताब से ही बताया है। थैंक यू सर। ओके ये सर। गलत है। सर हेलो आप हेलो सर अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, सर ये पूछना था कि इसी पेशेंट के अंदर ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर शी विल गो अप टू द 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड her HP level become 9 gram per deciliter, then we will save 2 pints of blood or to save the two groups of the patient. हम दो ग्रुप्स को सेव कर देंगे या पिंट्स हम निकाल देंगे या ब्लड को हम निकाल कर फ्रीज करवाएंगे अगर 9 ग्राम पर आ रही है HP तो 9 in a ग्राम 36 weeks of a pregnancy. 36 9 ग्राम पे आप ये कहिए कि जी इस पेशेंट में नंबर 1 मैं 2 बैग फ्रिज में रखूंगी, इसको एडमिट कर रखूंगी, और चूंकि शी कैन गो इनटू लेबर एनी टाइम, और वो फिर ऐसे पेशेंट जो है वो दे कैन सस्टेन ब्लड लॉस, थोड़ा सा लॉस भी उनको PPH लगता है, तो इसलिए उसको दाखिल रखूंगी। और नंबर 3 मैं ये कहूँगा कि इस पेशेंट में 9 ग्राम वाली बॉर्डर लाइन जा केस है, उसको आप जैसे भी करो ठीक हो जाएगा, एज लॉन्ग एज यू एडमिट एंड कीप द ब्लड इन द फ्रिज। लेकिन उसको मैं टोटल डोज इन आयरन इन्फ्यूजन भी दे दूंगा, क्योंकि दे दूंगी कि वो उसके बाद के, जैसा आपने में से किसी ने कहा था कि जी वो तो 30 वीक से पहले को भी आयरन रिजर्व बिल्डअप करना चाहते हैं बाई TDI, लेकिन इसको मैं जरूर दे दूंगा पेरेंटल आयरन। तो बिकॉज वी हैव नो अदर वे कि लेबर शुरू होने वाली है, सम ब्लड लॉस इज इमिनेंट, और उसके बाद मेरी चॉइस ये। लेकिन सर 36 वीक्स पे हम जो इसको देंगे इंजेक्टेबल आयरन, सर उसने तो HP 3 हफ्ते बाद जाके बढ़ानी है, तो उसका फायदा होगा पेशेंट को? ये बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व आपने उसके पूरे कर लिए, और ये जो गैप पीरियड है वो उसके लिए आपने 2 बैग फ्रिज में रख लिए हैं। आफ्टर ऑल आप रिकमेंडेड WHO की 11 है, पाकिस्तान में 10 है, 10 से इतना दूर नहीं है। आप अगर आप कहती था फिर मैं कहता कि हाँ उसको ब्लड अस्सलाम वालेकुम सर, आप प्लीज इसमें NTD के हवाले से गाइड कर देंगे। अगर ये पेशेंट RH नेगेटिव होती है तो हम इसको NTD किस डोज में देते हैं? क्या वही स्टैंडर्ड डोज हमें देनी है, एंटीनेटली भी पोस्टनेटली भी? और जी वो क्योंकि पेशेंट की हीमोग्लोबिन का फीटल ब्लड सेल्स गो फीटस को एनीमिया थोड़ा होता है, लेकिन वो कितना उसका ब्लड मदर की सर्कुलेशन में आता है उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, इसलिए NTD फुल डोज दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो सर, मेरा क्वेश्चन IUGR से रिलेटेड है। सर मैंने पूछना था कि IUGR की डायग्नोसिस हमारी ग्रोथ चार्ट की बेस पे है ना, उस पे प्लॉट करते हैं, उस पे हमें पता चलता है IUGR है कि नहीं। डॉपलर पे तो नहीं है ना सर? डॉपलर इसलिए है कि अगर आपके ख्याल में IUGR की वजह प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है,
तो प्लेसेंटा इंसफिशिएंसी की वो जो डॉपलर एट कितनी स्टेज पे अम्बिलिकल आर्टरी का होता है, कितनी स्टेज पे सेरिब्रल आर्टरी का होता है, कितनी स्टेज पे वो यूट्राइन आर्टरी का होता है, ये आपने किताब में पढ़ा होगा। तो 20 वीक्स पे यूट्राइन आर्टरी का है, 24 वीक्स से बियॉन्ड अम्बिलिकल आर्टरी का है, और इफ यू सस्पेक्ट एनीमिया इन द फीटस तो फिर सेरिब्रल आर्टरी का है। डॉपलर है, लेकिन इसकी प्लेस जो है जैसे मैंने प्रोग्नोसिस में है ना सर, डायग्नोसिस में तो नहीं है। नहीं, डॉपलर की वैल्यू प्रोग्नोसिस में है ना। उसका असर क्या हो रहा है उस पे? जी सर। और सर मैंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री किसी की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की है ना, तो उसे हाई डोज फोलिक एसिड थ्रू आउट प्रेगनेंसी देंगे कि फर्स्ट 3 मंथ्स ही देंगे? इवन बिफोर प्रेगनेंसी। आप इस आपके सवाल में जोर से ऐड कर लीजिए, इवन बिफोर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का इरादा हो उस वक्त, क्योंकि जो डिफेक्ट है वो 6 to 8 वीक्स ऑफ ग्रोथ में होता है, तो प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस होते होते 6-8 हफ्ते हो जाते हैं। इसलिए उसका डैमेज जो अगर होना है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से वो हो चुका होता है। बाद में सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए आपने एम्फेसिस ये करना है कि व्हेन द पेशेंट डिसाइड्स टू बिकम प्रेग्नेंट, प्लान्स प्रेगनेंसी, उस वक्त फोलिक एसिड शुरू करें और थ्रू आउट देने से। चले, मैं ख्याल काफी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है सर, मुझे ये पूछना है कि पेशेंट को हम कहते हैं सिम्टोमेटिक हो तो ब्लड दो, कौन सी आप सिम्टम्स हो, अगर पेशेंट का है वीकनेस, लेथार्जी, उस पे भी हमें ब्लड देना है? जस्ट लेथार्जी तो आई सपोज इट कैन बी डेल्ट विद बेड रेस्ट। ये सांस की तकलीफ है जो पेशेंट को ज्यादा बहुत करती है, आई वुड से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो वो हो तो फिर दीजिए। वरना मैनू तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀ क्लास 50 ਨੂੰ लेथार्जी। सर आपने कार्डियक एग्जामिनेशन भी बताना था ऑप्स के पेशेंट में, सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था सर, वो नेक्स्ट टाइम। चलो नेक्स्ट टाइम याद करा दीजिए फिर तो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Pleasure talking to you all and wish you good luck in the next examination. Thank you. Jazakallah sir. Thank you sir. Thank you very much sir. आप पास होके